Hello students, this is Kauslin Singh, Faculty School of Management, BBD University. Today in this lecture, I'm going to explain a new topic of production operations management, that is production planning and control. So in this video lecture, I will explain the basic concept of production planning and control. We will also cover the various phases of production planning as well as the different modules of control phase. So let's start with the concept of production planning and control. So production planning and control is a tool which is available to the management to achieve the stated objectives. Production planning starts with the analysis of the given data, which is regarding the demand of product, delivery schedule, etc. And on the basis of the given information, uh, a scheme of utilization of firm's resources like machines, material, and man are worked out to obtain the target in the most economical manner. Once the plan is prepared, एक बार production planning होने के बाद जैसे ही हमारा plan prepared हो जाता है, the next is the important phase is execution of plan. And this phase is performed in line with the details given in the planning. Production control comes into action if there is any deviation between the actual and planned. तो सबसे लास्ट में जो प्रोडक्शन कंट्रोल वाला फेज आता है वो कब आता है? एक बार जब हमने प्लान बनाकर उसको एग्जीक्यूट किया तो उसके बाद हमें ये देखना होता है कि इफ देयर इज एनी डेविएशन और डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल और प्लान परफॉर्मेंस, जो हमने एक्चुअल में हमारा जो टारगेट था और जो हमने एक्चुअली जो ऑर्गेनाइजेशन ने एक्चुअल में जो हमारा परफॉर्मेंस है और जो हमने स्टार्टिंग में जो टारगेट सेट किया था उसके बीच में क्या कोई ऐसा डिफरेंस है? अगर कोई डिफरेंस है, इफ वी फाइंड एनी डेविएशन डिफरेंस, then corrective measures are taken. So corrective action is taken so as to achieve the targets set as per the plan by using the control techniques. तो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल में बेसिकली ये दो चीजें आती हैं. प्रोडक्शन प्लानिंग जहाँ पर हम डिफरेंट जो डेटा अवेलेबल है उसके बेसिस पर हम उसे एनालाइज करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम फ्यूचर का एक रोड मैप प्रिपेयर करते हैं. और एक बार प्लानिंग हो जाने के बाद देन वी एग्जीक्यूट दैट प्लान इन अ इफेक्टिव मैनर. और सबसे लास्ट में कंट्रोल फेज में हम ये देखते हैं कि डेविएशन तो नहीं है. इफ देयर इज एनी डेविएशन, if there is any difference between the actual and planned target, then we take corrective measures. So this is the fundamental basic concept of production planning and control. इसको थोड़ा सा सेपरेटली भी देख लेते हैं, प्रोडक्शन प्लानिंग और प्रोडक्शन कंट्रोल को. इसमें हम प्रोडक्शन प्लानिंग की अगर हम बात करते हैं तो प्रोडक्शन प्लानिंग इज अ प्री प्रोडक्शन एक्टिविटी जो कि प्रोडक्शन से पहले स्टार्ट होने वाला एक प्रोडक्शन से पहले स्टार्ट होने वाली एक एक्टिविटी है. और it is the predetermination of manufacturing requirements such as manpower, materials, machines, and manufacturing process. In spite of planning to the minute details, most of the time it is not possible to achieve production 100% as per the plan. So there may be number of factors which affect the production system, because of which there is a deviation from the actual plan. तो ये मैंने पहले भी आपको बताया कि चाहे कितनी भी हम डिटेलिंग कर लें या कितनी भी प्लानिंग कर लें, 100% हम परफेक्शन के साथ उस टारगेट को 100% अचीव नहीं करते हैं. कुछ ना कुछ डेविएशन होता है और ये जो डेविएशंस होते हैं वो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. सो if there is any deviation between actual production and planned production, the control function comes into action. And production control through control mechanism tries to take corrective action to match the planned and actual production. तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि वो फैक्टर्स कौन से हैं which are actually responsible for the deviation.
तो अगर हम की बात करें तो ये कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं, जैसे कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स ड्यू टू शॉर्टेज, प्लांट इक्विपमेंट एंड मटेरियल मशीन ब्रेकडाउन, मशीन्स का खराब हो जाना, इक्विपमेंट्स का खराब हो जाना, चेंजेस इन डिमांड एंड रश ऑर्डर्स, वर्कर्स का absent होना, lack of coordination and communication between the various functional areas of the business. So these are the basic factors which are responsible for the deviation in the production process. So with the help of this fundamental concept, we can define the production planning and control as the direction and coordination of the firm's resources towards attaining the predetermined goals. So production planning and control helps to achieve uninterrupted flow of materials through production line by making available the materials at the right time and required quantity. आइए अब जान लेते हैं कि why production planning and control is needed, why it is required, इसकी जरूरत क्या है और ये क्यों जरूरी होता है. So the first point is effective utilization of firm's resources. Second is to achieve the production objective with respect to quality, quantity, cost, and timeliness of delivery. To obtain the uninterrupted production flow in order to meet customers' varied demand with respect to quality and committed delivery schedule. To help the company to supply good quality products to the customer on the continuous basis at competitive rates. इसके अलावा there are some other objectives. There are some objectives of production planning and control, like systematic planning of production activities to achieve the highest efficiency in production of goods or services. To organize the production facilities like machines, men, etc. to achieve stated production objectives. Optimum scheduling of resources, coordinate with other departments relating to production to achieve regular, balanced, and uninterrupted production flow, to confirm the delivery commitments, material planning and control, and to be able to make adjustment due to changes in demand and rush orders. So these are the basic objectives of the production planning and control. Now let's discuss the phases of production planning and control. यानी कि प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल जो पूरा ये प्रोसेस है, इसमें किस तरह के कितने फेजेस होते हैं, उन फेजेस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं. So generally there are three common phases are found in the production planning and control. Like the first one is planning phase, second one is action phase, and third and last phase is the control phase. So let's start with the planning phase. Here we will discuss the different modules of the planning phase, and हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि प्लानिंग फेज किस तरह से क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और इसका इम्पैक्ट आने वाले जो फेजेस हैं, जैसे कि जो एक्शन फेज है या कंट्रोल फेज है, उस पर क्या हो सकता है. सो प्लानिंग की अगर हम बात करें तो प्लानिंग इज अ फ्यूचर ओरिएंटेड एक्टिविटी. प्लानिंग इज एन एक्सरसाइज ऑफ intelligent anticipation in order to establish how an objective can be achieved. So production planning determines the optimal schedule and sequence of operations, economic batch quantity, machine assignment, and dispatching priorities for sequencing. If we talk about the categories of planning phase, the planning phase can be divided into two categories: prior planning and active planning. So let's discuss the first category of planning phase, that is prior planning. तो जैसे कि नाम से ही क्लियर है
कि प्रायर प्लानिंग इज अ प्री प्रोडक्शन प्लानिंग, प्रोडक्शन से पहले की बात हम कर रहे हैं, अभी हमने प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं किया है, प्रोडक्शन से पहले की चीज है, प्रोडक्शन से पहले का ये प्रोसेस है. So this includes all the planning efforts which are taking place prior to the active planning. And what are the basic modules of pre-planning? Like product development and design, forecasting, aggregate planning, and material requirement planning. ये सारे इसके मॉड्यूल्स हैं. अब इसके बारे में एक एक करके हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है. और जो प्रायर प्लानिंग है या प्री प्लानिंग है, इसमें ये जो सारे कंपोनेंट्स मैंने बताए, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डिजाइन, फोरकास्टिंग, एग्रीगेट प्लानिंग, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, इनका एक्चुअल में इनका क्या मतलब है, तो ये हम देखते हैं. तो पहले तो बात कर लेते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डिजाइन. तो ये जितनी भी मैंने चीजें बताई, जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए आपको, ये सारी प्रोडक्शन से पहले की चीजें हैं. ठीक है. सो इट्स अ पार्ट ऑफ प्री प्लानिंग phase. So the first point is product development and design. Product development or design is a very critical and important phase of product uh, manufacturing. और यहाँ पर companies invest their time and money. और ये इतना important phase है कि इस फेज में, यानी कि इस स्टेज पर अगर कंपनी कोई मिस्टेक करती है, कोई गलती करती है, तो इसका इम्पैक्ट अल्टीमेट जो प्रोडक्ट है, अल्टीमेट जो आउटपुट है, उस पर इसका बहुत एडवर्स इम्पैक्ट हो सकता है. तो इसको बहुत ही केयरफुली ये स्टेप, इसमें इस फेज को बहुत ही केयरफुली इम्प्लीमेंट करना होता है. और इसमें बहुत ही नॉलेज, एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज रिक्वायर्ड होता है. So product development and design is the process of developing a new product with all the features which are essential for the effective use and designing it accordingly. Forecasting is the second module of pre-planning phase, and it is an estimate of demand. Simple meaning इसका यही है कि it's an estimate of demand which will happen in future. Since it is only an estimate based on the past demand, proper care must be taken while estimating it. So demand forecasting के ऊपर भी बहुत सारी चीजें based होती हैं, dependent होती हैं. तो forecasting भी बहुत important एक phase है pre-planning का, क्योंकि how much material will be required, how much manpower will be employed, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं forecasting पर based होती हैं. Aggregate planning, which aims to find out a product wise planning. ठीक है. किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में अलग अलग प्रोडक्ट लाइन हो सकते हैं, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट कैटेगरीज हो सकते हैं. तो प्रोडक्ट वाइज अगर हम जो प्लानिंग करते हैं, वो हमारी एग्रीगेट प्लानिंग होगी. तो एग्रीगेट प्लानिंग एम्स टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट वाइज प्लानिंग. The fourth module of pre-planning is material requirement planning, MRP. It's a technique for determining the quantity and timing for the acquisition of dependent items needed to satisfy the master production schedule. ठीक है. जो मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल होता है, जो हमारा वीकली प्लान होता है, जिसको कि हम वेयर वी डिसाइड व्हाट टू मेक एंड व्हेन टू मेक. तो ये चीजें ये किसके ऊपर बेस्ड होता है, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग पर बेस्ड होता है. ठीक है ना. तो मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, MRP, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल. नाउ द सेकेंड फेज इज एक्टिव प्लानिंग. ठीक है. तो एक्टिव प्लानिंग जो है वो हमारा सेकेंड प्लानिंग का सेकेंड फेज है. और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि प्रोसेस प्लानिंग एंड रूटिंग, मटेरियल प्लानिंग, टूल प्लानिंग, लोडिंग, शेड्यूलिंग. तो ये हमने लास्ट में अभी हमने जो डिस्कस किया था,
जो आपका प्रायर प्लानिंग, यहाँ पे जितने भी हमने मॉड्यूल्स देखे हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डिजाइन, फोरकास्टिंग, एग्रीगेट प्लानिंग एंड मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, ये सारा का सारा हमारा, ये भी सारे हमारे प्रोडक्शन से के पहले की चीजें हैं। लेकिन एक्टिव प्लानिंग में जो हम मॉड्यूल्स डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे कि मटेरियल प्लानिंग, टूल प्लानिंग, लोडिंग, शेड्यूलिंग, प्रोसेस प्लानिंग एंड रूटिंग, ये इसके एडवांस स्टेज में आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम कुछ रूटिंग से रिलेटेड, लोडिंग से रिलेटेड, शेड्यूलिंग से रिलेटेड और इन सारी चीज़ों से रिलेटेड हम डिसीजन लेते हैं। सो इसको वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये जितने भी एक्टिव प्लानिंग के जितने भी मॉड्यूल्स हैं उनका एक्चुअल मीनिंग क्या है। सो प्रोसेस प्लानिंग एंड रूटिंग, which is a complete determination of the specific technological process, steps and their sequence to produce products at the desired quality, quantity and cost. It determines the method of manufacturing a product. So process planning में actually हम decide ये करते हैं कि किस तरह का method होगा, manufacturing method होगा, जो मैन्युफैक्चरिंग मेथड होगा उसका, उसमें जो स्टेजेस होंगे उनका सीक्वेंस क्या होगा, ठीक है। और यहाँ पे रूटिंग की भी हम बात करते हैं, यानी कि सीक्वेंसिंग की भी बात करते हैं यहाँ पर, यानी कि रूटिंग प्रिस्क्राइब्स द फ्लो ऑफ वर्क इन अ प्लांट एंड इट इज रिलेटेड टू द कंसीडरेशंस ऑफ लेआउट, टेम्पररी लोकेशंस फॉर रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट्स एंड मटेरियल्स हैंडलिंग सिस्टम। सो प्रोडक्शन प्रोसेस प्लानिंग एंड रूटिंग is the first component of the active plan, ठीक है। देखिए जो प्रायर प्लानिंग थी, प्री प्लानिंग जो थी, उसमें हम किस तरह के डिसीजंस लेते थे, उसमें हम वो सारी चीज़ें हम देख रहे थे जो कि बहुत ही बेसिक लेवल पर हमें डिसाइड करनी होती है, जैसे कि फोरकास्टिंग, जैसे कि प्रोडक्ट डिज़ाइन। जबकि एक्टिव प्लानिंग में हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़कर उन सारी चीज़ों के बारे में हम डिसाइड करते हैं, उन्हें हम डिसाइड करते हैं, उनके बारे में हम डिसीजन लेते हैं जो कि प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड है, प्रोडक्शन के लिए जरूरी है। जैसे कि किस तरह का प्रोडक्शन सिस्टम होना चाहिए, शेड्यूलिंग कैसी होनी चाहिए, रूटिंग कैसी होनी चाहिए, इन सब सारी चीज़ों के बारे में डिसीजन लेते हैं। तो ये भी प्लानिंग का पार्ट है, लेकिन प्री प्लानिंग से थोड़े से आगे की बात हम कर रहे हैं। The second point is material planning. So this is also a module of active plan. Material planning में क्या करते हैं? It's a process which determines the requirement of various raw materials, components, sub-assemblies by considering the trade-off between the various cost components like carrying cost, ordering cost, shortage cost. तो इन सारी cost components को consider करते हुए हम material planning करते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मटेरियल की रिक्वायरमेंट हुई, हमने कितना भी मटेरियल मंगा लिया, हमें ये भी देखना होगा कि कैरिंग कॉस्ट क्या होगी उसकी। अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मटेरियल रख रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कैरिंग कॉस्ट इंक्रीज होगी, और अगर क्वांटिटी कम है और रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है ऑर्डरिंग कॉस्ट इंक्रीज होगी। और अगर मान लीजिए कि हमारे पास स्टॉक की बिल्कुल ही कमी हो जाती है और स्टॉक खत्म हो जाता है, तो स्टॉक आउट सिचुएशन आ सकती है जो कि प्रोडक्शन को रोक सकता है, प्रोडक्शन में एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल क्रिएट हो सकता है और इसकी वजह से सेल्स लॉस हो सकती है, प्रोडक्शन डिले हो सकता है, ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सो मटेरियल प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। टूल प्लानिंग which determines the requirement of various tools, which type of tools and equipments are required. So it depends on the nature of production process. It depends on the technology which we are going to use in the production process. So ये बहुत ही एक्टिव प्लान में जितने भी मॉड्यूल्स हैं, दे आर बेसिकली रिलेटेड टू दी plan, production plan and manufacturing plan. The fourth one is loading. Loading is a process of assigning jobs to several machines. हर एक मशीन में किस तरह का टास्क असाइन होगा, ये सारी चीजें
इसमें हम लोडिंग में हम डिसाइड करते हैं. Scheduling is the time phase of loading and determines when and what sequence uh, in what sequence the work will be carried out. This fixes the starting as well as the finishing time for each job. तो ये पूरा सेटअप हम डिसाइड करते हैं कि किस तरह से प्रोडक्शन होगा, किस तरह के टूल्स यूज होंगे, उसका सीक्वेंस क्या होगा, उसमें किस तरह का प्रोडक्शन मेथड हम यूज करने जा रहे हैं, मटेरियल प्लानिंग कैसे कर रहे हैं, ठीक है, उसकी शेड्यूलिंग क्या होगी, ये सारी टाइम उसका टाइम टेबल जो जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं, तो उस प्रोडक्शन का शेड्यूल क्या होगा, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर एक्टिव प्लानिंग में डिसाइड करते हैं. Now the third phase is the action phase. ये हम प्लानिंग की बात हम कर रहे हैं, ये जितनी भी हम प्रोडक्शन प्लानिंग के फेजेस की बात कर रहे हैं यहाँ पर. तो पहला हमने देखा था प्री प्लानिंग फेज, दूसरा एक्टिव फेज, and the third one is action phase. So action phase has the major step of dispatching. एक्शन फेज में सबसे इम्पोर्टेंट एक फेज होता है, सबसे इम्पोर्टेंट एक स्टेप होता है जिसे हम डिस्पैचिंग कहते हैं. और ये डिस्पैचिंग क्या है? डिस्पैचिंग इज अ ट्रांजिशन फ्रॉम प्लानिंग फेज टू एक्शन फेज. प्लानिंग और एक्शन फेज के बीच की एक कड़ी है, बीच का एक ट्रांजिशन है जो कि एक्शन फेज को डिस्पैच और प्लानिंग फेज को एक दूसरे से लिंक करता है. तो ये जो डिस्पैचिंग है, डिस्पैचिंग में हम करते क्या है, इस फेज में हम करते क्या है, इस फेज में बेसिकली द वर्कर इज ऑर्डर टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग दी प्रोडक्ट. यहाँ पर देखिए, इससे पहले हम जितनी चीजें बातें कर रहे थे, हम प्लानिंग से रिलेटेड चीजें कर रहे थे, कि बेसिक प्लानिंग से रिलेटेड चीजें कर रहे थे. स्टार्टिंग में हमने प्री प्लानिंग में बेसिक प्लान किया था. द सेकेंड जो हमारा एक्शन प्लान था, जो एक्टिव प्लान था, वहाँ पर हमने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हमने प्लानिंग की थी. और एक्शन फेज में हम जो हमारा डिस्पैचिंग वाला जो स्टेप है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम वर्कर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि उसे अब मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दें. ठीक है. सो यहाँ पर जो टर्म्स यूज होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पर एक्चुअली हम अब प्रोडक्शन को इम्प्लीमेंट करने, एग्जीक्यूट करने वाले हैं, अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं. So tasks which are included in dispatching are job order, store issue order, tool order, time ticket, inspection order, move order. तो ये कुछ बेसिक जो टर्म्स यूज किए हैं, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं. इसका मतलब क्या है, यानी कि जॉब ऑर्डर का क्या मतलब है, स्टोर इशू ऑर्डर का क्या मीनिंग है, टूल ऑर्डर क्या है, टाइम टिकट क्या है. तो इसको थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि ये सारी जो एक्टिविटीज हैं हम कहाँ पे परफॉर्म करते हैं, एक्शन फेज में करते हैं. So, what does job order means? Job order is a official authorization to the shop floor to start manufacturing the product. ठीक है, ये एक ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ये ऑथराइजेशन होता है कि अब मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करनी है. ठीक है. स्टोर इशू ऑर्डर गिव्स इंस्ट्रक्शन टू द स्टोर टू इशू मटेरियल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट एज पर द प्रोडक्शन स्पेसिफिकेशंस. टूल ऑर्डर instruct the tool room to issue necessary tools and equipments. And time ticket is a card which is designed to note down the actual time taken at various processes. So these are the modules of action phase. Now let's discuss the next part of the production planning and control, that is कंट्रोल फेज. सो कंट्रोल के बारे में हमने बात किया था. कंट्रोल फेज में हम करते क्या है, तो कंट्रोल फेज हैज फॉलोइंग टू इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल्स. इसमें दो चीजें आती हैं. एक तो देखिए, कंट्रोल के बारे में जैसे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कंट्रोल फेज में हम बेसिकली करते तो यही है कि वी ट्राई टू आइडेंटिफाई द डेविएशन बिटवीन द प्लान प्रोग्राम एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस. तो इसके बीच में हम जो डेविएशन या डिफरेंस होता है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं एंड देन वी टेक दी करेक्टिव मेजर्स. लेकिन कंट्रोल फेज में दो इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल्स होते हैं जिनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, और ये देखेंगे कि जो ये मॉड्यूल्स हैं इसमें हम क्या पता लगाते हैं.
और किस तरह से ये हमें कंट्रोल मैकेनिज्म, जो हमारी कंट्रोल प्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए जो हम स्टेप्स लेते हैं उसमें कैसे हेल्प करता है. तो द फर्स्ट मॉड्यूल इज प्रोग्रेस रिपोर्टिंग एंड द सेकेंड मॉड्यूल इज करेक्टिव एक्शन. ठीक है, तो ये जो करेक्टिव एक्शन वाला जो पॉइंट है, इट डिपेंड्स ऑन दी प्रोग्रेस रिपोर्टिंग. तो पहले हमें ये जानना जरूरी है कि जो हमारा प्रोसेस है, ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, वो कैसा चल रहा है, उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है. ठीक है, सो प्रोग्रेस रिपोर्टिंग, इन प्रोग्रेस रिपोर्ट द डेटा रिगार्डिंग व्हाट इज हैपनिंग विद द जॉब इज कलेक्टेड. ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये बार बार ये जो टर्म यूज हो रहा है जॉब. सो जॉब मीन्स अ सीक्वेंस ऑफ टास्क. जो मैन्युफैक्चरिंग में जो हम अलग अलग जो डिफरेंट डिफरेंट टास्क परफॉर्म किए जा रहे हैं, ठीक है, उसको हम इंडिकेट कर रहे हैं जॉब्स. So in process progress reporting, the data regarding what is happening with the job is collected. And also it helps to make comparison with the present level of performance. The various data pertaining to material rejection, process variation, equipment failure, operator efficiency, operator absenteeism, tool life, etc. are collected and analyzed for performing variance analysis. So ये जितनी भी चीजें हमने देखी, इनके बारे में हम डेटा कलेक्ट करते हैं. कहाँ पर? प्रोग्रेस रिपोर्ट प्रिपेयर करने के लिए. तो किन चीजों के बारे में? मटेरियल रिजेक्शन, प्रोसेस वेरिएशन, इक्विपमेंट फेलियर्स, ऑपरेटर एफिशिएंसी. ये जितने भी एक्टिविटीज हैं जो भी परफॉर्म की जा रही हैं ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन प्रोसेस, उनसे रिलेटेड डिटेलिंग और डेटा हम कलेक्ट करते हैं. और इसके बेसिस पर जो एनालिसिस होती है, दैट इज यूज्ड इन वेरिएंस एनालिसिस. The second module of control phase is the corrective action. So task under corrective action is generally make provision for an unexpected event. Like for example, corrective actions are creating schedule flexibility, schedule modifications, capacity modifications, make or buy decisions, pre-planning, and so on. So these are the examples of corrective action where we try to uh, modify schedule, we try to redesign our plant capacity, and we take make or buy decision. So this is all about production planning, with the different phases of production planning and the phases or modules of control phase. At last, there are some parameters of production planning and controls. So while deciding the production planning and control, while taking decision regarding the production planning and control, there are some parameters which are considered by the material management department, or sorry, production management department. So these parameters are materials, machines and equipments, methods, process planning, which is also called routing, estimating, loading and scheduling, dispatching, expediting, inspection and evaluation. So these are parameters on which we take the decision of production planning and control. So this is all about this topic. I think you would be able to understand the basic concept of production planning and control, the various phases of production planning and its modules, and different modules and phases which comes under the control phase. So with this, I would like to conclude this topic. Thank you.